Hello viewers, welcome to our channel. Today we are going to discuss about marine insurance and types of marine insurance policies. Now let's see what is marine insurance. Marine insurance is a type of insurance that covers cargo losses or damages caused to ships, cargo, terminals and any transport in which goods are transferred or acquired between different points of origin and their final destination. A contract of marine insurance is an agreement whereby the insurer undertakes to indemnify the insured upon the happenings of marine perils against a consideration to be paid by the insured in the form of premium. ये मेरीन इंश्योरेंस जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है और इंश्योर्ड जो है ये प्रीमियम भरता है और इंश्योरर जो है दैट इज द कंपनी वो इंडेमनीफाई करती है जो भी कॉम्पेंसेशन जो भी होता है ड्यूरिंग द लॉस. Now let's see the types of marine insurance policies. First one is voyage policy. This policy provides coverage for a specific voyage. ये एक specific route के लिए ही होती है. As soon as the voyage trip comes to an end, the policy expire. और जैसे ही voyage trip खत्म हो जाता है तो ये policy जो है ये expire हो जाती है. This type of policy is purchased generally for cargoes. और ये पॉलिसी जो है जनरली कार्गो के लिए होती है. द रिस्क कवरेज स्टार्ट्स व्हेन द शिप लीव्स द पोर्ट ऑफ डिपार्चर. फॉर एग्जांपल अ वॉयज पॉलिसी फ्रॉम बॉम्बे पोर्ट टू हांगकांग पोर्ट. द नेक्स्ट वन इज टाइम पॉलिसी. दिस पॉलिसी इज इशूड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इशू की जाती है. ऑल द मैरीन पेरिल्स during the period are insured. The ship is insured for a fixed period irrespective of voyages. The policy is generally issued for 1 year. Time policies may sometimes be issued for more than a year or they may be extended beyond a year to enable a ship to complete a voyage. In India, a time policy is not issued for more than a year. ये जो टाइम पॉलिसी है ये जनरली 1 साल के लिए ही इशू की जाती है और कभी कभार हम इस पॉलिसी को एक्सटेंड भी कर देते हैं जब तक शिप जो है अपना पूरा कंप्लीट नहीं कर लेता है वॉयज. द नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड पॉलिसी. दिस पॉलिसी इज अ मिक्सचर ऑफ टाइम एंड वॉयज पॉलिसी. ये जो पॉलिसी है ये मिक्सचर है टाइम और वॉयज पॉलिसीज की. अ शिप मे बी इंश्योर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वॉयज फॉर अ पीरियड. फॉर एग्जाम्पल अ शिप मे बी इंश्योर्ड बिटवीन बॉम्बे एंड लंदन फॉर 1 year. These policies are issued to ships operating on a particular route. और ये जो मिक्स पॉलिसी है ये एक पर्टिकुलर रूट के लिए ही इशू की जाती है. नेक्स्ट वन इज valued policy. Under this policy, the value of the policy is decided at the time of contract. कॉन्ट्रैक्ट के समय पे वैल्यू जो है इस पॉलिसी की डिसाइड की जाती है. द वैल्यू इज रिटन ऑन द फेस ऑफ द पॉलिसी. इन केस ऑफ लॉस द एग्रीड अमाउंट विल बी पेड. और अगर कभी लॉस हो जाता है तो जो भी अमाउंट है जो भी कंपनसेशन है वो दे दी जाती है. There is no dispute later on for determining the value of compensation. तो इसमें बाद में इसमें कोई dispute नहीं रहता है regarding the compensation के लिए. The value of goods includes invoice cost, freight, insurance charges, some margin of profit and other incidental expenses. The ships are insured in this manner. Next one is port risk policy. This policy covers the loss suffered by the ship when it is anchored at a port. जब शिप जो है ये पोर्ट पे खड़े रहते हैं और अगर उसमें कोई भी डैमेज हो जाए कोई भी लॉस हो जाए तो ये जो पॉलिसी है इसको पोर्ट रिस्क पॉलिसी इसको कवर करती है एंड इट इज फॉर अ सर्टेन पीरियड ओनली.
या तो शिप्स जो है कभी वीकली खड़े रहते हैं या फोर्टनाइटली हो सकता है या मंथली या 2 मंथ्स के लिए खड़े रहते हैं, तो उसके लिए ये पॉलिसी जो है इट इज वेरी यूजफुल. The next one is unvalued policy. When the value of insurance policy is not decided at the time of taking up a policy, it is called unvalued policy. जब हम पॉलिसी लेते हैं तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी तो उसमें वैल्यू जो है तब डिसाइड नहीं होती है, उसको हम अनवैल्यूड पॉलिसी कहते हैं. द अमाउंट ऑफ लॉस इज ascertained when loss occur. और जब लॉस अकर होता है तभी हमें लॉस का अमाउंट पता चलता है, और ये जो अमाउंट है ये हमें बाद में पता चलता है. एट द टाइम ऑफ लॉस और डैमेज द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज डिटरमाइंड. सब्जेक्ट मैटर जो है दैट इज व्हाट यू आर सेंडिंग एंड फॉर हाउ मच यू आर सेंडिंग. In finding out the value of goods, the invoice cost, freight, insurance charges, shipping charges are included, and in this case no margin for anticipated profit is added. और इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है इसमें ऐड नहीं होता है, जबकि वैल्यूड पॉलिसी में प्रॉफिट जो है वो ऐड होता है. नेक्स्ट वन इज फ्लोटिंग पॉलिसी. When a person ships goods regularly in a particular geographical area, he will have to purchase a marine policy every time. It involves a lot of time and formalities. जब आप एक साल में अगर किसी कंट्री में फॉर एग्जांपल अमेरिका में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको बार बार जो है इसमें फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं पॉलिसी लेने के लिए, और इसमें काफी सारा टाइम भी लग जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम एक लमसम पॉलिसी ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 करोड़ की पॉलिसी ले लिया, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप साल में 10 टाइम्स या 20 टाइम्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इसके अंदर सपोज अगर आपने एक मंथ में 2 lakhs का एक्सपोर्ट किया, 2 months में आपने 3 lakhs का एक्सपोर्ट किया, तो ये आपको शो करना पड़ता है. तो आपने पूरी लमसम पॉलिसी जैसे आपने लिए 4 करोड़ की, तो उसमें जब तक ये जो पूरा सम अश्योर्ड है पॉलिसी के अंदर, जब तक ये एग्जॉस्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, तब तक ये पॉलिसी चलती है. और उसके बाद आप इसको प्रीमियम पे करके आप इसको दोबारा रिन्यू कर सकते हैं. So he purchases a policy for lump sum amount without mentioning anything else, that is the value of goods and name of the ship, etc. When he sends the goods, a declaration is made about the particulars of the goods and the name of ship. और जब goods send हो जाती हैं तो एक declaration बनाते हैं और उसमें particulars of goods और name of ship जो है वो लिख दिया जाता है. The insurer will make an entry in the policy and the amount of policy will be reduced to that extent. और जितना उन्होंने पर मंथ एक्सपोर्ट किया होता है तो वो जो है अमाउंट जो है वो रिड्यूस कर देते हैं उतना उस एक्सटेंट तक. एंड दिस पॉलिसी इज कॉल्ड एन ओपन और अ फ्लोटिंग पॉलिसी. नेक्स्ट वन इज फ्लीट पॉलिसी. When a company purchases one policy for all its ships, it is called a fleet policy. जब बहुत सारे वेसल्स के लिए जो है ये पॉलिसी जो हम एक साथ परचेज कर लेते हैं, द इंश्योर्ड हैज एन एडवांटेज ऑफ कवरिंग इवन एन ओल्ड शिप्स एट एन एवरेज रेट ऑफ प्रीमियम. तो इसमें क्या होता है कि ओल्ड शिप्स जो है ये भी इसमें कवर हो जाते हैं, क्योंकि जो ओल्ड शिप्स की जो है इनकी जो इंश्योरेंस जो है ये जल्दी नहीं हो पाती है. सो यू ऑल्सो गेट अ डिस्काउंट ऑन इट. द नेक्स्ट वन इज वेजर पॉलिसी. This is a policy held by a person who does not have any insurable interest in the subject insured. इस wager policy में क्या होता है, इसमें जो interest is not required in this. The policy is not enforced by law. This policy is based on mutual understanding. It is also called honor policy or पॉलिसी प्रूफ ऑफ इंटरेस्ट दैट इज पीपीआई. ये जो पॉलिसी है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस होती है. जैसे अगर आपके कोई ओल्ड क्लाइंट्स हो गए या आपने किसी फ्रेंड्स के थ्रू ये पॉलिसी ली है, तो इस पॉलिसी के अंदर जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है इट इज नॉट रिक्वायर्ड, जो कि एक बहुत ही एसेंशियल पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट का, इंश्योरेबल इंटरेस्ट. तो अगर
इंश्योरर अगर आपको कंपेंसेशन देने से मना कर दे तो आप इसको कंपेंसेशन जो है आप ले नहीं सकते हैं इवन थ्रू द कोर्ट. द नेक्स्ट वन इज currency policy. It is a policy issued in foreign currency. For example, if a policy issued for an Indian ship is in terms of dollars, it is known as currency policy. जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम जो है ये फॉरेन करेंसी में करते हैं और करेंसी जो है ये हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है. जैसे यूएस डॉलर्स जो है ये हमेशा फ्लक्चुएट करते हैं. तो जब भी हम अगर इससे सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें जो है वो यूएस डॉलर में उसकी करेंसी देनी पड़ती है. तो जब ये वेरिएशंस होते हैं तो इसमें जो है हमें बहुत सारा लॉस भी हो सकता है. तो इसको कम करने के लिए हम करेंसी पॉलिसी जो है वो लेते हैं. नेक्स्ट वन इज ब्लॉक पॉलिसी. समटाइम्स अ पॉलिसी इज इशूड टू कवर बोथ लैंड एंड सी रिस्क. If the goods are sent by rail or by truck to the departure, then it will involve risk on land also. तो ब्लॉक पॉलिसी में क्या होता है, ये दोनों चीजें कवर करती हैं, दैट इज बोथ लैंड एंड सी रिस्क. अगर आप गुड्स को बाय रेल और बाय ट्रक से भेज रहे हैं एंड देन इट विल इन्वॉल्व रिस्क ऑफ लैंड, तो इसमें लैंड का रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है टू सम एक्सटेंट. One single policy can be issued to cover risk from the point of dispatch to the point of ultimate arrival. This policy is called a block policy. Next one is construction builders risk policy. Such policies are issued for the builders of the ship for a period exceeding 1 year. ये policies जो है ये builders जो होते हैं ships को उनको issue की जाती है एंड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग और 1 साल से ज़्यादा के लिए, क्योंकि शिप्स को जो है वो बनाने के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए इनको बहुत टाइम लगता है. 5 साल भी लग सकते हैं, 6 साल लग सकते हैं, 7 साल लग सकते हैं. दे कवर रिस्क ऑफ वेसल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो जब पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन के टाइम में अगर कोई भी शिप को डैमेज हो जाता है तो ये जो पॉलिसी है ये इसमें कंस्ट्रक्शन बिल्ड रिस्क पॉलिसी में कवर हो जाता है. These are the basic types of marine insurance policies. Businesses can select the most suitable policy for their requirements to get the best coverage at the lowest rate of premium. Do like, share and subscribe my channel for more videos. Thanks for watching. Have a great day ahead. Bye bye.